Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Good afternoon, class. Welcome back to your new home revise lecture session. So today we are going to learn about number system. Okay. So what actually the number system is? Okay, we are going to learn about number system and what the number system is. Chapter 1. The name indicates that we are going to learn something about numbers. Okay, so what all things are we going to learn in number system? Let's learn about. Okay, the very first is we are going to learn about irrational numbers. Okay, next is real numbers and their decimal expansions. Next is representing real numbers on the number line. Okay, how we are going to set the numbers on a number line. Next is operations on real number, operations of real numbers, and at last we are going to learn about laws of exponents for that real numbers. Okay, so before actually starting, let's learn about something called as numbers. Now what the numbers are and what Today. all numbers that includes. Okay, so there are many types of numbers. So we learn very first which is called natural numbers. Now natural numbers actually starts from where? Yes students, if you know, let me know in the chat box. Where does the natural number start from? Can I have in the chat box? Okay, so natural number starts from 1. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do we call 0 or minus 1 or minus 2 as natural numbers? No, we don't call them as natural numbers. So natural number starts from 1, 2, 3, 4. Okay, and it goes up to infinite. Okay, so these are called as counting numbers. Okay, so 1, 2, 3, 4 are all called counting numbers, which are also called natural number. Okay, this does not include 0. Okay, this does not include 0. Next is whole numbers. Now what does whole number includes? Yes. Yes students, what does whole number includes? Whole number has a property which includes 0. Okay, so it starts from 0, then it goes up to the entire natural number series. Okay, so it continues from 0, 1, 2 and up to infinite. So, okay, and remember that this all are only positive numbers. Okay, so natural number starts from 1, which are all positive numbers. The whole number has one special property which starts from 0 and it goes up to infinite. Okay, so this denotes it denoted by W. Okay, the whole numbers are denoted by capital W. Next we are learning about integers. Now integer is actually all the mixture of natural number and whole number. Okay, so natural number starts from 1, whole number starts from 0, but integer has a property which says it has negative number also. So it comes minus 1, minus 2, minus 3 and so on. It goes to infinite. So integers have a property that it includes all negative numbers, all positive numbers including 0. Okay, so there are no fraction in this. Okay, there are no fraction. That means if I say 1 upon 2, now 1 upon 2 does not comes under integers. Okay, so 1 upon 2 is not an integer. Okay, so this integer is denoted by the symbol capital Z. Okay, next is rational number. Now rational numbers are those which can be written in the form P upon Q. Okay, so you can write any number. Right, if I say 2 upon 3 or 3 upon 4 or 5 upon 9 or 11 upon 17, this all can be comes under rational numbers. Okay, so here P and Q, this both are integers. We can take any integer in P and Q, but Q should not be 0. Now I want this from you. Why Q cannot be 0? Yes Satish, all natural numbers can be whole numbers, but all whole numbers can't be natural number. Very good. May I know this, that why we are taking Q as non-zero?
Yes, we are taking q as non-zero because anything divided by 0 is not defined. Okay, so 0 upon anything is basically 0, but if you take anything upon 0 cannot be defined, it cannot be defined. So here is a condition where you will take q as non-zero. Okay, so rational number includes Noted. everything, natural numbers also, integers also. Okay, and these are all negative and positive fractions. Okay, so if I say minus 3 by 4 or minus 5 by 9 or minus 7 by 8, this all comes under rational number, irrespective of it is negative or it is positive, they are considered as rational number. ठीक है, so ये सारे जो कलेक्शन है नेचुरल नंबर रैशनल नंबर्स के, दिस इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल Q. ठीक है, सिंबल Q. Okay, now there is one Rational- property called as rational number between any two rational numbers. Now we know that दो रैशनल नंबर्स है तो उसके बीच में भी एक नंबर आएगा, लेकिन वो कौन सा होगा, वो इरैशनल नंबर होगा या रैशनल नंबर होगा. So we have a property called as rational numbers between any two rational numbers. What this property tells us, there are Number. infinitely many rational numbers between any two given rational number. अगर आपके पास कोई भी दो rational number है, जैसे 1/2 and 5/3. So now 1/2 and 5/3 में you will find many rational numbers between them. Okay, so I want this from my students कि इन्हीं rational numbers के बीच में will you find any irrational number or not? Yes? Satish, 0 is neutral. Okay, yeah, good. Okay, so there are infinitely many rational numbers and we can say कि हर दो rationals के बीच में एक rational तो होगा ही. Even आगे जाके you will also learn कि every rationals के बीच में आपको irrational numbers भी मिलेंगे. But what are irrational numbers? That will come very soon. But you should remember this, that there are infinitely many rational numbers between any two given rational number. So let us take a look at number line और हम लोग कुछ ऐसे rational numbers लिखेंगे 1 and 2 के बीच में. ठीक है, so now we know कि 1 और 2 ये दोनों क्या है, ये दोनों एक natural numbers है. ठीक है, तो इन दोनों rational numbers के बीच में we need to find कि how many rational numbers are possible between 1 and 2. Okay, so between 1 and 2 there are many rational numbers. जैसे if I Divided add by this 2. both 1 plus 2 upon 2, what will this give me? Yes, what will this give me? This is 3 upon 2. Yes, so ये हो जाता है 3 upon 2. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसको हम लोग बुलाते हैं 3 upon 2. बेसिकली 3 upon 2 is 1.5, लेकिन ठीक है उसको आपको डेसिमल में चेंज करने का जरूरत नहीं है. बट 1/2 के बीच में एग्जैक्ट एक्चुअली बीच में इट विल कम 1.5 विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज 3/2 इन रैशनल नंबर फॉर्म. ओके, अब अगर मुझे ये ढूंढना है कि 1 और 3/2 के बीच में क्या है, ठीक है, What do we do? 1 and 3/2 के बीच में क्या है, अगर मुझे ये फाइंड करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ऐड दिस. ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा 1 + 3/2 बिकॉज आई नो कि जब कभी मुझे एक मिडिल टर्म ढूंढना होता है तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ. और ये 2 ढूंढने की वजह से यहाँ पे भी मैं यही करूँगा. यहाँ पे आई डू 1 + 3/2. तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, ये मुझे अप्रोक्स मिल जाएगा 5/4. नाउ द वैल्यू ऑफ 5/4 इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 1 भी एक रैशनल है, इवन 3/2 एक रैशनल है, और इसके बीच में आपको क्या मिल रहा है, और एक रैशनल मिल रहा है. सो स्टूडेंट्स, वी शुड नो कि 5/4 जो है ये भी एक रैशनल नंबर है. ठीक है, ये सतीश 1/2 3/2 they can be there. Yes, they will be there actually. Okay, they will be there. So again the question comes कि अगर 3/2 और 2
इनके बीच में अगर मुझे एक रैशनल नंबर ढूंढना है तो मैं कैसे करूंगा? कम ऑन, यू कैन ट्राई, यू ऑल कैन ट्राई। यस सतीश, श्रद्धा, यू ऑल कैन ट्राई। अगर आपको आ रहा है तो आप ट्राई कीजिए कि 3/2 और 2 के बीच में अगर मुझे एक रैशनल नंबर चाहिए, इफ आई वांट अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 2, हाउ वी विल फाइंड? यस कम ऑन, 3/2 और 2 इसके बीच में अगर हमको एक रैशनल नंबर चाहिए तो हम बेसिकली क्या करेंगे, 3/2 प्लस 2/2, ठीक है, तो ये हम लोग को मिल जाएगा 7/2/2, ठीक है। सो दिस विल कम्स आउट टू बी 7/4। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हर दो रैशनल नंबर के बीच में हमको और एक रैशनल नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग कुछ आगे जाके एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हमको पता चलेगा कि हर रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर है। और इन शॉर्ट हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हर दो रैशनल के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो 1 और 2, अगर 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट है तो यू कैन इमेजिन कि अगर आप 2 और 3 भी लोगे वहां पे भी आपको इनफाइनाइट मिलेगा, 3 और 4 लोगे उधर भी आपको इनफाइनाइट मिलेगा। इन शॉर्ट आप कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे 1 और 4 भी ले लोगे, उसके बीच में भी आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रैशनल नंबर, ठीक है। सो लेट्स टेक एन क्विक एग्जांपल कि हम लोग कैसे दो रैशनल नंबर के बीच में एक और रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं। सो वी हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब 3 एंड 4 जो है ये छोटे नंबर्स है, ठीक है, और इसके बीच में जो रैशनल नंबर्स है हमको 6 ऐसे रैशनल नंबर ढूंढने हैं which lies between 3 and 4. Okay, so how we'll do that? सबसे पहले जो 3 और 4 है, सबसे पहले जो 3 और 4 है इसको एक्सटेंड कर लो। नाउ यू नो कि आप ना इसका सेंटर ढूंढ लो। सेंटर ढूंढना मतलब क्या, आप इसका 3 + 4 विच इज 7 और 7 को 2 से डिवाइड कर दो तो आपको कितना मिलेगा, 3.5, विच इज बेसिकली हम लोग 7.2 ही लिखेंगे, 7/2 ही लिखेंगे। अब आपको पता चल गया कि 3 और 4 के बीच में 7/2 आ रहा है। नाउ योर मोटिव इज टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 7/2, ठीक है। तो 3 और 7/2 के बीच में आपको एक रैशनल नंबर ढूंढना है, वो कौन सा होगा, लेट्स चेक इट आउट। सो वी विल डू 3 + 7/2/2 which is 13/2/2 and we will get 13/4। now 13/4 ये हमको किसके बीच में मिला, 3 और 7/2 के बीच में मिला, ठीक है। सो 3 और 7/2 के बीच में हमारा नंबर आ रहा है 14/7। ओके, नाउ सॉरी 13/4। नाउ हमारा मोटिव है 7/2 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर ढूंढना। अब 7/2 और 4 के बीच में हमको पता है कि एक रैशनल नंबर तो मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो आप उन दोनों नंबर को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपको मिलेगा 7/2 + 4/2 विच कम्स आउट टू बी 15/4, ठीक है। अब हमको कितने रैशनल नंबर मिले, हमको 3 मिले। हमारा मोटिव क्या था, 6 रैशनल नंबर्स ढूंढना। सो इसके आगे आप जो फर्स्ट वाला आपको मिला है विच इज 3 + 13/4, उसके बीच में एक रैशनल नंबर ढूंढ लो तो वो कितना मिल जाएगा आपको, 25/8, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 + 13/4 द होल डिवाइड बाय 2 करना है तो आपको मिल जाएगा 25/8। सिमिलरली आप 13/4 और 7/2 के बीच में एक रैशनल नंबर ढूंढोगे तो उसको सॉल्व करने के लिए यू जस्ट हैव टू ऐड बोथ टर्म्स एंड यू हैव टू डिवाइड बाय 2, ठीक है। अगर आप उसको डिवाइड बाय 2 करोगे यू विल बी रिमेनिंग विद 27/8। तो ये एक नंबर है जो 13/4 और 7/2 के बीच में आता है विच इज कॉल्ड 27/8, ठीक है। नेक्स्ट आपको 7/2 और 15/4 के बीच में ढूंढना है तो 7/2 + 15/4 डिवाइड बाय 2। वही सेम मेथड को वी आर यूजिंग एंड यूटिलाइजिंग इन एवरी स्टेप। ओके, सो ये जब आप सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 29/8। तो आप देख सकते हो कि हमको 6 नंबर्स मिल चुका है, ठीक है। हमको 3, फिर 25/8, 13/4, 27/8, 7/2, फिर ये 29/8
और 15/4। ये 6 नंबर्स हमको मिल चुके हैं विच इज बिटवीन 3 and 4। ठीक है, सो 3 and 4 के बीच में ये सारे नंबर्स रैशनल है। ठीक है, सो यू हैव गॉट 6 रैशनल नंबर्स, बट इन होमवर्क यू कैन डू वन थिंग, यू कैन सर्च फॉर मोर। आप क्या करो, इसमें 10 रैशनल नंबर्स ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, सो इफ यू फाइंड 10 रैशनल नंबर्स, आपको ये आइडिया आ जाएगा कि हाउ टू एक्चुअली फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली 3 and only 4, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एनी टू। ठीक है, सो टेक दिस एज एन होमवर्क कि आप 10 रैशनल नंबर ढूंढ लो। ठीक है, R सो दिस वाज ऑल अबाउट रैशनल नंबर। नाउ संजू, खेलना बंद करो, अब थोड़ी पढ़ाई भी कर लो। बस 5 मिनट और मम्मा। ऐसा क्या करूं जिससे इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए? अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं। होम रिवाइज जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग कि आपको कहना पड़े। बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ। होम रिवाइज, अब पढ़ाई हुई आसान। ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे हम लोग ने रैशनल नंबर पढ़ लिया, अब हम इर्रेशनल नंबर्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ना इर्रेशनल नंबर्स एक्चुअली रैशनल नंबर जैसे ही होते हैं, बट यू विल फाइंड अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। लेट्स लर्न व्हाट इट इज। ठीक है, अब इर्रेशनल ऐसे होते हैं विच बेसिकली कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P/Q फॉर्म। ठीक है, वो ना P/Q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जब आप P and Q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स को आप क्या बुलाते हो? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, सो इफ वी टेक एन एग्जांपल, तो एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाते हैं? √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, √6, इवन पाई। ठीक है, तो √2 की वैल्यू क्या होगी? लेट मी नो फ्रॉम द चैट बॉक्स। √2 की वैल्यू क्या होगी? स्टूडेंट्स, आप 9th स्टैंडर्ड में हो, यू शुड नो the value of √2, √3, even pi की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, because this will help you not only now but आपको 11th 12th आगे जब भी आप जाओगे FY SY इंजीनियरिंग मेडिकल जिसमें भी आप जाओ, you should know the value of pi। so सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था the value of √2। yes students, √2 की वैल्यू, कम ऑन। नहीं सतीश, हम √2 की वैल्यू 2 नहीं लेते। √2 की वैल्यू इज बेसिकली 1.414। ठीक है, ये एक्चुअली सिर्फ 1.414 नहीं है, ये 1.414 के आगे इतने डिजिट्स है विच इज एक्चुअली नॉट स्टॉपिंग। ठीक है, वो टर्मिनेट नहीं हो पाता। तो √2 इज बेसिकली एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इवन √3 की वैल्यू क्या हो सकती है? हाँ सतीश, हमारी पाई की जो वैल्यू है दिस इज 3.14। ओके, 3.15 नहीं, 3.14। बेसिकली आप उसको ऐसा बोल सकते हो कि 22/7 इज द वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, तो √2 की जो वैल्यू थी वो 1.414, √3 की जो वैल्यू होगी वो 1.71 एंड पाई की जो वैल्यू है दैट इज 3.14। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एग्जांपल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। नाउ वी लर्न अबाउट रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो रियल नंबर्स मतलब ये नाम से इंडिकेट मत जाओ, रियल मतलब वो सच्चा नंबर नहीं होगा। रियल नंबर्स क्या होंगे? रियल नंबर्स आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग का कलेक्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो रियल नंबर आर बेसिकली द कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स, ऑल द इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसमें ना नेचुरल नंबर्स भी आ गया, इसमें आपका होल नंबर्स भी आ गया, इसमें आपका इंटीजर्स भी आ गया, इसमें आपका रैशनल नंबर्स भी आ गया और इसमें आपका इर्रेशनल नंबर भी आ गया। सो ये पूरा जो 5 है, ये 5 के 5 का मिक्सचर जब आप बना दो, इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स इज कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग। ओके, ऑल द नंबर लाइंस। ओके, सो दिस इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल R। ओके, नेक्स्ट we should know that every real number is either a rational number or a
इररेशनल नंबर। एक्चुअली ना यहाँ पे आप एक चीज बोल सकते हो कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रियल नंबर, every integer is a real number, every rational even irrational number is also a real number, okay, but vice versa is not at all true, ठीक है, ये true नहीं होगा, because if every real number is a natural number then let me know that what is 1.2 or 1.5. Is 1.5 a natural number? Yes, no, 1.5 is not a natural number। तो आपको पता है कि हर नेचुरल नंबर एक रियल नंबर होता है, ठीक है, लेकिन हर रियल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न दूसरा पॉइंट जो है, बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। अब ये मैंने क्यों बोला, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई आई टोल्ड कि हर दो रियल नंबर के बीच में देयर शुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। यस स्टूडेंट्स, आप बता सकते हो क्यों ऐसा होता है, हर दो रियल नंबर के बीच में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स क्यों मिलते हैं, व्हाई, दिस क्वेश्चन इज व्हाई। Yes, Satish, real number consists of all natural, whole, integer, even rational and irrational numbers. Good. ठीक है, तो ये इसीलिए होता है between any two real number there exists an infinite number of real numbers just because you consider 2 and 3. अब ये 2 and 3 के बीच में जैसे हमने पहले 6 रैशनल नंबर्स ढूंढे थे, वैसे ही मैंने आपको एक होमवर्क दिया टू फाइंड 10 रैशनल नंबर। अगर मैं आपको एक होमवर्क दे दूं कि यू फाइंड 100 नेचुरल नंबर्स, 100 रैशनल नंबर्स, विल यू फाइंड? यस, यू विल फाइंड, बिकॉज देयर एग्जिस्ट, ओके, देयर एग्जिस्ट not only 100 but infinite number of rational number, even irrational number, and even there exists infinite number of real number between any two smallest number also, ठीक है। if I give you an example of 1.5 and 1.6, ठीक है, अब 1.5 और 1.6 हमको लगता है कि दोनों बाजू बाजू में, तो इसमें कुछ होगा नहीं, लेकिन ट्रस्ट मी इसके बीच में भी रैशनल इररेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इसके बीच में भी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो द थर्ड पॉइंट इज ऑन अ नंबर लाइन on the each point correspond to a unique real number. Why I am telling unique real number? क्योंकि वही रियल नंबर ना दूसरी बार नहीं आएगा, दैट मीन्स यूनिक मतलब एक और एक ही बार आएगा। सो ऑन द अदर हैंड एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। जैसे हम लोग 1 और 2 बोलते हैं, क्या आपने कभी देखा है कि 1 और 2 के बाद वापस 1 आया? नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट। सो 1 और 2 इनका एक स्पेसिफिक प्लेस है, ठीक है। हम ऐसा नंबर लाइन पे नहीं लिख सकते कि 1 के बाद आपने 3 लिखा, 3 के बाद आपने 2 लिखा। यू हैव टू कंपल्सरीली राइट 1 आफ्टर 2 आफ्टर 3 आफ्टर 4, ठीक है, एंड सो ये एक उसका रूल है, ठीक है। एंड द लास्ट लाइन इज दिस इज व्हाई वी कॉल अ नंबर लाइन एज अ रियल लाइन। रियल लाइन मतलब हम लोग इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट रिप्रेजेंट एवरी नंबर one after another and we called as real line, ठीक है। so this was all about irrational numbers, okay। so इसी का और एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, तो ताकि हम लोग को एक क्लियर माइंड हो जाएगा कि irrational numbers होते क्या है बेसिकली, ठीक है। so the square root give me, मेरे को इसका आंसर चाहिए, ठीक है। are the square root of all positive integer irrational? हर स्क्वायर रूट का जब आप हर एक का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ये इररेशनल होगा क्या? ये इररेशनल होगा क्या मतलब आप कोई भी इंटीजर ले लो, उसका आप स्क्वायर रूट ले लो, तो वो इररेशनल होगा क्या? ये मुझे चाहिए। कम ऑन, आई वांट दैट फ्रॉम यू ऑल। Yes, I think you are all still आप सोच रहे हो उसके बारे में कि आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है एंड मुझे ये बताना है कि वो इररेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो वी वांट एन एग्जांपल। चलो एग्जांपल मैं दे दूंगा, यू टेल मी येस और नो। नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। सतीश, गुड, वेरी गुड, नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? आप एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ रूट 4 का, रूट 4,
अब √4 की एक्चुअल वैल्यू क्या है? इट इज 2 बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। लेकिन आपको पता है 2 क्या है? 2 एक नेचुरल नंबर है, या 2 एक इंटीजर है, या 2 एक होल नंबर है, लेकिन वो इर्रेशनल नंबर है क्या? नहीं। तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, हर एक ऐसा नहीं होगा, कुछ कुछ हो सकते हैं बट हर एक ऐसा नहीं होगा। ओके, सो इसका आंसर इज नो। ठीक है, No. दिस इज If we take a positive integer, तो दिस वाज ऑल अबाउट इरेशनल नंबर। अभी लेट्स लर्न अबाउट रियल नंबर एंड दैट डेसिमल एक्सपांशन। हमको डेसिमल एक्सपांशन लेना है और उस रियल नंबर के हम लोग को डेसिमल एक्सपांशंस लेने हैं। ठीक है, real सो रियल नंबर एंड देन डेसिमल एक्सपांशन। तो हमको पता है कि सारे जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं ना, ये डेसिमल नंबर में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं सारे को, मतलब क्योंकि हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो इफ आई से कि 2/4 विच इज अगेन 1/2, क्योंकि 2 1 जा 2 2 जा तो 1/2, तो हम ये बोल सकते हैं कि हर एक रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज इन अ डेसिमल नंबर। ठीक है, सो अगर ये एग्जांपल ले लिया 3/8, अब 3/8 का एक्चुअल डिवीजन करने अगर आप जाओगे number of तो आपको रिमाइंडर कितना मिलता है? 0, बिकॉज द आंसर इज 0.375। तो जब आप 8 को 3 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.375 एज ए कोशेंट। एंड कोशेंट हमारा होता क्या है? यस, कोशेंट हमारा होता क्या है? इट इज एन आंसर। ठीक है, तो कोशेंट हमारा एक आंसर होता है। और यहाँ पे आप देखो कि 0.375 ये रुक गया, इसका मतलब हमको रिमाइंडर क्या मिला? 0 मिला। अगर जब कभी रिमाइंडर 0 मिलता है तो जो कोशेंट होता है, ठीक है, और 3/8 जो हमारा फ्रैक्शन है, जो हमारा रैशनल नंबर है, इसको हम क्या बुलाएंगे? वी विल कॉल्ड इट एज अ टर्मिनेटिंग नंबर। मतलब वो जो नंबर है ये टर्मिनेट होता है, ये रुकता है कहीं ना कहीं जाके। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। वी विल डिवाइड 2/3। ठीक है, जब अभी आप 2/3 को जब डिवाइड करोगे तो यू विल सी कि 2/3 का जो आंसर है दैट इज 0.666। इज इट एंडिंग? टेल मी, इज इट एंडिंग? नो, राइट, ये एंड नहीं हो रहा है, क्योंकि ना आप अगर रिमाइंडर देखोगे तो आपको वापस से 2 मिला है। दैट मीन्स आप वापस से 20 लिखोगे, अगेन यू विल डू 3 6 18, तो फिर से आपको 6 मिलेगा। दैट मीन्स ये 0.6666 इट इज नेवर एंडिंग। और नेवर एंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इट डज नॉट टर्मिनेट, और हम लोग इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ओके, ये सतीश, क्योंकि अगर हम कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं तब वो p/q के फॉर्म में होता है। वी कैन नॉट डिवाइड इट, वी कैन गेट अ आंसर और अ क्वेश्चन। ओके, ओके, सो ये यहाँ पे ना एंड नहीं हो रहा है। ऐसे एंड ना होने वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिकर हो रहा है, 0.6666, इट इज नेवर एंडिंग। दिस आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ डिवाइडिंग 14/11। तो जब आप 14/11 करते हो, अब यहाँ पे हो क्या रहा है? देखो यहाँ पे ना एक मैजिक हो रहा है। इफ यू सी अ मैजिक, आपको जो क्वोशंट है वो क्या मिल रहा है? 1.2727, और नीचे आपको रिमाइंडर वापस से क्या मिल गया? 3 मिल गया। तो जब आपको रिमाइंडर 3 मिल गया तो आप वापस से 30 लिखोगे। दैट मीन्स यू विल अगेन व्हाट राइट? 11 2 जा 22, फिर से आपको 8 मिलेगा विच इज 80, फिर से 11 7 जा 77। तो यहाँ पे ये जो 272727 है ना, ये 1.272727 इज रिपीटिंग। मतलब वो जो 27 नंबर है ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। मतलब ये ना रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, यहाँ पे रिपीट होता जा रहा है वही सेम डेसिमल। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ओके, सो ये था अबाउट रैशनल नंबर और उनका डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, अब हम लोग इसी को रियल नंबर्स में पढ़ते हैं।
सो वाइल लर्निंग इट इन रियल नंबर्स हमको एक चीज पता चल गई कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। इरैशनल नंबर क्या होते हैं? ये Rational number. डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरैशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो नहीं रुकता, नॉन रिकरिंग मतलब जो रिकर नहीं होता, मतलब जो स्टॉप नहीं होता वो। ओके उसका एग्जांपल है ये देखो, ये वाला 0.10 110 111 111 इसके आगे आएगा 5 times 10। तो ये जो नंबर है ना ये रिकरिंग भी नहीं है, इसका मतलब इसका जो सीरीज है वो भी बराबर नहीं है। मतलब पहले हमने देखा था ना 1.272727 वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है 10 then 110 111 तो वो फिक्स नहीं है, ठीक है। सो दिस आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इवन √3 इज एन रैशनल नंबर, ठीक है, सॉरी इरैशनल नंबर। तो इसकी जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1.7320508007, देन आगे आता है 4386 ऐसा कुछ तो नंबर आता है। तो ये ना नेवर एंडिंग है, ठीक है, इसमें आपको कभी भी ना रिपीट नंबर नहीं आएगा। सो दिस इज ऑल्सो एन नॉन रिकरिंग नंबर। ओके इसके बाद पाई की जैसे हमने वैल्यू बताई थी 3.1415 265 358, तो ये भी एक क्या है, एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। इवन √2। नाउ जनरली हम लोग पाई को क्या लेते हैं 22/7। एक्चुअली ना वो सही नहीं है, बिकॉज उसकी जो वैल्यू है ना वो आती तो वही है 3.14 एंड वो सब, लेकिन 22/7 जो है ना वो एक रैशनल नंबर में काउंट होता है, जस्ट बिकॉज हम लोग उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इफ वी कंसिडर पाई, तो पाई एक इरैशनल नंबर है, बिकॉज वो जो 3.14 की जो पूरी वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 22/7 जो है ना ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन वेयरएज पाई इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है। इसके आगे लेट अस समराइज ये सारा जो रिजल्ट हमने पढ़ा कि डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। और उसमें हमने दो टाइप्स पढ़ा, एक पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और एक हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। तो आई होप दिस ऑल द समरी इज क्लियर टू यू, ठीक है। इसके बेस पे हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं। ओके सतीश हम लोग देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके डोंट वरी या ओके। सो हम लोग अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q एंड वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स वेयर Q इज नॉन जीरो। रिमेंबर जब कभी आप P/Q लिखते हो तो यू शुड ऑलवेज राइट Q एज नॉन जीरो, ठीक है। तो हमको 0.6 बार, अब ये बार क्या होता है? बार इज सच कि ये ना एक रिपीटिंग नंबर है, मतलब 0.6666 दिस विल नेवर एंड, तो दिस इज 0.6666 कंटिन्यूअस, ठीक है। सो वी विल एक्सप्रेस दिस इन P/Q फॉर्म। सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ना x को 0.6 बार कंसीडर कर लेंगे, मतलब 0.666 को हम x कंसीडर करेंगे। अब जो 6 है वो एक ही रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। तो what we will do, we will multiply both the side, मतलब we will multiply 10 by x and 10 by 0.6666। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको नीचे मिलेगा 10x और यहाँ पे हमको मिल जाएगा 6.6666, ये पूरा रिपीटिंग, क्योंकि देखो 0.6 था इनटू जब आप 10 करोगे तो you will find 6.66, ठीक है। सो इसके आगे what you do, ये जो फर्स्ट वाला आपका इक्वेशन था इसको आप ये सेकंड वाले इक्वेशन से ना माइनस कर दो, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे आपको मिल जाएगा 9x = 6 एंड जब आप ये 9x में 9 को ये साइड लेके आओगे तो वो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चला जाएगा एंड यू विल गेट 2/3। तो एक्चुअली x की जो वैल्यू है वो 2/3 है, दैट मींस 0.6 बार की जो वैल्यू है दैट इज 2/3। आप इवन क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, उल्टा चले जाओ, 2/3 को आप रफ वर्क में डिवाइड करके देखो कि आपको कितना आंसर आता है, ठीक है। इट विल कम आउट टू बी 0.6666 ओनली,
ठीक है। तो यहाँ पे 0.001 के ऊपर पूरा बार है, दैट मीन्स यहाँ पे 0.001 जो है 001 इज एक्चुअली रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो मेथड होगी ना वो तो सेम होगी, ठीक है, बट द ओनली थिंग हियर द चेंज विल बी कि आप दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। व्हाट विल डू, यू विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 1000, और उसके बाद जो हमारी जो मेथड थी वो सेम रहेगी। क्या सेम रहेगी, यू विल मल्टीप्लाई 1000 हियर, यू विल मल्टीप्लाई 1000 हियर, एंड फिर आप दोनों को भी सबट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 999x इक्वल टू 1, एंड देन यू विल डिवाइड दैट 999 बाय 1, तो 1/999, तो 0.001 का जो आंसर है दैट इज 1/999, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये सारे रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी अगर आप नंबर ले लो, अगर आपको उसको नंबर लाइन पे ढूंढना है कि वो किधर है, या फिर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, लेट्स लर्न अबाउट इट। Represent. ओके, सो व्हेन वी रिप्रेजेंट सच एज, मतलब कोई भी एक यूनिक रियल नंबर है वो एक पॉइंट पे ही रहेगा, मतलब आपके नंबर लाइन पे you know that there exists a unique place of that real number on the real line। तो आपको कोई भी अगर नंबर फाइंड करना है तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि उसको करते कैसे, बिकॉज हर एक का एक यूनिक प्लेस है, तो वो जो है वो उसी प्लेस पे आने वाला है, ठीक है। सो corresponding to each real number there is a unique point on the number line, और इसी प्रोसेस को जब आप करोगे, जब आप नंबर लाइन पे उसको लेके आओगे, तब आपको पता चलेगा कि इस दो नंबर के बीच में ये वाला नंबर भी आता है, ठीक है। तो लेट्स लर्न, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसमें कौन सा नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। Visualize. नाउ 4.2. नाउ 4.26 हमको नंबर लाइन पे करना है, कहाँ तक, अप टू 4 डेसिमल प्लेस। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स लर्न। नाउ वी कैन मैग्नीफाई, देखो 4.26 को जब आप विजुअलाइज करोगे तो इट इज बेसिकली 4.262626 ये रिपीटिंग आएगा, बिकॉज 4.26 के ऊपर बार है, दैट मीन्स 4.26 के आगे ना पूरा एक रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। तो इसको एक फॉलोइंग स्टेप से हम लोग करेंगे। अब देखो 4.26 जो है ये ऑब्वियस है कि 4 और 5 के बीच में लाई करेगा, लेकिन ये 4 और 5 के बीच में कहाँ लाई करेगा ये हमको नहीं पता, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, we will divide the interval 4 and 5 in 10 smaller parts। हम 4 और 5 को 10 ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे, ठीक है। तो let's cut it as 4.1, 4.2, 4.3 and so up to 4.9। अब हमारा जो क्वेश्चन है that is 4.26। अब ये हमको एक चीज पता चल जाएगी कि 4.26 will obviously lie between 4.2 and 4.3, ठीक है, क्योंकि 4.2 और 4.3 के बीच में ही 4.26 आता है। तो वी नो कि 4.2 और 4.3 के बीच में ये इंटरवल लाई करेगा, तो इसको भी आप मैग्नीफाई कर लो। अब 4.26 ये किधर आएगा, तो फिर से आप क्या करो, उसको 10 टुकड़ों में बांट दो। किसको बांटोगे, 4.2 और 4.3 को, तो आपको मिल जाएगा 4.21, 4.22, 4.23 एंड अप टू 4.29। अब आपको एक चीज विजुअलाइज करनी है कि 4.26 एक्चुअली आएगा किधर, तो आपको देखो मिल रहा है ऑन द 6th पॉइंट, ठीक है। तो 4.26 के जस्ट अगर आप बाजू में कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 4.26, ठीक है। 4.2626 ये रिपीटिंग है। अब आप क्या करो, अब आपको एक चीज मैग्नीफाई करनी पड़ेगी फिर से कि 4.2626 ये रिपीटिंग नंबर है, ठीक है ना। तो रिपीटिंग नंबर होने की वजह से आप ये कंफ्यूज करोगे कि 4.262626 ये रिपीटिंग जो नंबर है इसको डालना किधर, वेयर शुड वी पुट दिस। उसको डालने के लिए फिर से आप उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। द प्रोसेस गोज ऑन, दिस प्रोसेस गोज ऑन। तो आपको मिल जाएगा कि एक्चुअल उसका जो पार्ट है ना वो इधर है, देखो 4.262 से लेके 4.263 के बीच में है, ठीक है। सो उसकी जो लाइन है फिर से आप उसको मैग्नीफाई करो
और फिर से आप उसको ये देखो 4.2626 आपको दिख रहा है, आपको 4.2626 आपको दिख रहा है। अब आपकी जो क्वेश्चन है दैट इज 4.26 का बार, दैट मीन्स यू शुड नो कि 4.26262626 किधर आता है। तो अगेन आप क्या करो, ये जो 4.2626 है और 4.2627 है, इसको मैग्नीफाई करके 10 टुकड़ों में बांट दो। ठीक है, जब आप 10 टुकड़ों में बांट दोगे तब आपको और एक चीज मिलेगी विच इज 4.262626 का रिपीटिंग नंबर। ठीक है, सो दिस वे व्हाट यू डू, विजुअलाइज द नंबर लाइन, एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर पे कौन कौन से ऑपरेशंस पॉसिबल है ये हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, सी द सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे आप 1/2 और 3/4 करोगे तो 1/2 और 3/4 को करोगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये भी आपको याद रखना है कि कोई भी दो रैशनल नंबर को जब आप माइनस करोगे, जैसे 5/2 माइनस 3/2, ठीक है, ये आप करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलने वाला है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो जब कोई दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट लोगे वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, ओके, एंड if we divide a rational number by another rational number except 0, obviously आप 0 से divide नहीं कर सकते, we always get a rational number only। ठीक है, and last is कि sum of rational number and an irrational number is a irrational number। देखो ये ना एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको पता करना है कि आप 1/2 ले लो which is a rational number और उसको ना पाई से ऐड करो। पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। तो जब आप हाफ को 3.14 से ऐड करोगे यू विल फाइंड कि आपको ना वापस रैशनल नंबर नहीं मिलेगा, बिकॉज 3.14 और वो जो पूरी पाई की वैल्यू है वो इतनी लंबी है कि हाफ से जब उसको ऐड करोगे यू विल नॉट फाइंड अ परफेक्ट नंबर, आपको वो इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है। दैट्स व्हाई दिस लास्ट पॉइंट इज वैलिड। ठीक है, ओके, नाउ इसके बारे में और भी हम पढ़ते हैं। The difference of rational number and an irrational number is also irrational। जैसे sum होता है वैसे ही difference भी होता है। Even product of non-zero rational number with irrational number is also irrational। Even the quotient of non-zero rational number with the rational number is an irrational number। मतलब आप कोई भी quotient ले लो और नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन वो एक रैशनल नंबर रहेगा और दूसरा अगर इरैशनल नंबर रहेगा तो फाइनली आपको एक इरैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, दिस वाज द थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट, द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ टू इरैशनल नंबर मे बी अ रैशनल नंबर और एन इरैशनल नंबर। ये हम लोग क्यों बोलते हैं, जस्ट बिकॉज अगर सेम नंबर रहेगा समझो इरैशनल नंबर में तो वो आपको क्या देगा, 1 देगा। तो 1 इज बेसिकली क्या, अ रैशनल नंबर, बिकॉज 1/1 हम लोग लिख सकते हैं। तो कोई भी अगर दो सम रहेगा, डिफरेंस रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा या क्वेश्चन रहेगा ऑफ एनी टू इरैशनल नंबर मे बी रैशनल और इरैशनल। ठीक है, सतीश या बार तो लगा सकते हैं तो उस पर्टिकुलर नंबर पे एक डॉट डाल दो। व्हाट आर यू टॉकिंग, या जिसके ऊपर भी वो नंबर अनकाउंटेबल है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद वाला नंबर इज इनफाइनाइट, बोथ कैन वर्क। पॉइंट के बाद वाला नंबर इज इनफाइनाइट अगर रहेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो ना नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो जाएगा, क्योंकि वो टर्मिनेट कहीं पे भी जाके नहीं हो रहा है, इवन वो रिकरिंग नहीं हो रहा है। रिकरिंग मतलब यू आर नॉट फाइंडिंग सेम नंबर। ठीक है, मतलब जैसे 6.12121212 ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, मतलब वो रिकर हो रहा है। ठीक है, नॉन रिकरिंग में कैसा हो गया, जैसे पाई वैल्यू है 3.14 ब्ला 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 ब्ला, बहुत लंबा नंबर है, उसमें ना कहीं पे भी जाके रिपीट नहीं होता है वो।
ठीक है, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. ओके, या सो लेट्स मूव अहेड. Now rationalizing a denominator. Now this is a very important topic when it's come to real number. ठीक है, अब rationalizing में basically होगा क्या, आपको ना हमेशा डिनोमिनेटर के बारे में देखना है. डिनोमिनेटर मतलब क्या कि जो आपका नीचे के तरफ होता है वो, ठीक है, यानी यहाँ पे देखो a और b एक इंटीजर्स है एंड x और y जो है वो नेचुरल नंबर्स है. तो rationalizing factor क्या होता है? rationalizing factor is basically आपको जो भी एक रैशनल नंबर दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है रूट एक्स प्लस रूट वाई, तो उसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा ना वो एग्जैक्टली उसका अपोजिट होगा, लेकिन अपोजिट साइन में होगा. ठीक है, विच इज रूट एक्स माइनस रूट वाई. जैसे आप ऐसे बोल दो कि 1/2 प्लस 5/6, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? 1/2 माइनस 5/6. ठीक है, दिस बोथ आर rationalizing factor of each other. ठीक है, अब देखो a प्लस बी रूट एक्स और a माइनस बी रूट एक्स, ये क्या है? दोनों एक दूसरे के rationalizing factor है. ठीक है, ओके, तो इसका हम लोग एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं फटाफट, so we can get to know कि how these operations are been operated. Recall pi is Now हमको पता है कि पाई जो है ये क्या होता है? दिस इज अ रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर. मतलब पाई जो होता है दिस इज बेसिकली सी अपॉन डी विच इज सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर. नाउ इट सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इररेशनल. मतलब पाई जो है वो इररेशनल नंबर है, ये हमको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. तो ये कॉन्ट्राडिक्शन को सॉल्व कैसे करना ये हम पढ़ लेते हैं. ठीक है, see, of a line. now when we measure the length of a line with a scale or with any other device, we only get an approximate rational value, that is c and d both are irrational. That means जब कभी हम लोग 22/7 अगर आप जब निकालोगे तो 22/7 अगर आप लाइन या तो स्केल से निकालोगे तो आपको ना हमेशा एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिलेगी. आपको कभी भी ना एक परफेक्ट वैल्यू मिलना बहुत मुश्किल होगी. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पाई जो है ना वो कोई रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ना आपको एक परफेक्ट फ्रैक्शन कभी नहीं मिलेगा. ठीक है, क्योंकि 22/7 7 इज अ प्राइम नंबर. तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपको वैल्यू मिलने वाली है अप्रोक्सीमेट मिलेगी, आपको परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी. एंड जब कभी आपको परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलती है तो आप ये बोल सकते हो कि जो पाई है वो क्या है? एक इररेशनल नंबर है. ठीक है, ओके, तो हम लोग इसी में एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं. simplify each of the following expressions. ओके, यहाँ पे हम लोग को ना सिंप्लीफाई करना है. हाउ वी विल सिंप्लीफाई? हमको 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. नाउ आप जब 9th स्टैंडर्ड में हो तो आपने पहले के सेशंस में यानी 6th या 7th स्टैंडर्ड में आपने ये पढ़ा होगा कि आपको ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू सी 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3, इसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू कंसीडर ईच एंड एवरीथिंग. व्हाट ईच एंड एवरीथिंग? आपको ये 3 को ये 3 माइनस पूरे रूट 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रूट 3 को भी 3 माइनस पूरे रूट 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आपको क्या मिल जाएगा? 9 माइनस 3 विच इज 6. ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो सिर्फ 6 होगी. सो 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 का वैल्यू 6. ठीक है, अनदर एग्जांपल, आपको रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर लेना है. अभी स्क्वायर मतलब क्या? उसी नंबर को उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. दैट मीन्स रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर आपको 2 बार लिखना है. दैट मीन्स a प्लस बी स्क्वायर, ये आपको पता होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो आप यहाँ पे a को रूट 5 कंसीडर कर लो, b को आप रूट 2 कंसीडर कर लो और उसके बाद यू जस्ट अप्लाई दी फॉर्मूला. तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यू विल फाइंड कि यहाँ पे रूट 5 का जो स्क्वायर है वो 5 आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर आपको 2 आ जाएगा और ये जो 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 10, क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 2 इज रूट 10 और ये 2 जो है वो नीचे आ जाएगा.
तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या बनेगी 7 प्लस 2√10। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज कि ऐसा आंसर क्यों आता है, ऑब्वियसली आएगा बिकॉज यू आर स्क्वेयरिंग अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो उसकी जो वैल्यू है वो भी एक रैशनल या इरेशनल नंबर ही आपको देने वाली है। ठीक है, ओके। So the last topic which we are learning today is laws of exponents for real number। ठीक है, exponents मतलब जो पावर होते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। Students, So ठीक है, Let अब देखो A- यहाँ पे a जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, b जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, और ये दोनों ना रियल नंबर्स है, तो इट कैन बी एनी नंबर। एंड m एंड n जो है, m और n जो है ये एक रैशनल नंबर्स है। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर मतलब यहाँ पे आप कोई भी डेसिमल ले सकते हो। ठीक है, डोंट कंसिडर 1.2874 एंड ऐसा वाला नंबर्स मत कंसिडर करना। रैशनल नंबर विच बेसिकली स्टॉप्स, यानी 1/2 या 3/4 या 8/7, ऐसे रैशनल नंबर्स आप कंसिडर करना। तो यहाँ पे उसकी 4 प्रॉपर्टी या तो 4 रूल आप बोल सकते हो। सबसे पहला है a/m, सॉरी a⁻m इंटू a⁻n। अब याद रखना, जब कभी आपका पास बेस मतलब ये a जो है ये बेस बोला जाता है, ये बेस अगर सेम रहेगा और पावर कुछ भी होने दो, ठीक है, और बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आपको आंसर में आएगा बेस रेस टू m प्लस n। वो जो m और n है ना पावर्स में वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी को आप अपोजिट में ले लो। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी आप इसी की अपोजिट ले लो। अगर m और n पावर में है और बीच में अगर डिवीजन है तो आपको यहाँ पे माइनस करना है पावर में। ठीक है, a⁻m - n आप लिखोगे, जो यहाँ पे प्लस था ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देन इफ देयर इज एन मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक पावर को दूसरा पावर है, मतलब a⁻m⁻n है अगर, तो वो m और n जो है वो क्या हो जाता है, एक हो जाता है, दे गेट मल्टीप्लाइड। ठीक है, एंड द लास्ट इज a⁻m इंटू b⁻m। अगर बेस भी सेम है और बेस अगर अलग है और अगर पावर सेम है, फर्स्ट वाले में क्या पढ़ा था, बेस सेम है लेकिन पावर अलग है। इधर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो वो हो जाएगा ab, नीचे का बेस ज्वाइन हो जाएगा एंड पावर कॉमन में आ जाएगा। सो वी कंसीडर a greater than 0। ओके, यस सतीश, कोई भी नेगेटिव स्क्वायर नंबर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा और कोई भी नेगेटिव क्यूब नंबर का वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। वेरी गुड, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है नेगेटिव स्क्वायर्स की। ठीक है, नेगेटिव स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, या सो m और n एक ऐसे इंटीजर्स है सच दैट m एंड n हैव नो कॉमन फैक्टर्स अगर अदर देन 1। मतलब ये बेसिकली ना कोप्राइम नंबर्स है। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि m और n ऐसे इंटीजर्स होते हैं जो एक दूसरे के प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे मैं 7 और 11 बोलूं, तो 7 और 11 क्या है, ये दोनों ऐसे नंबर्स है जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो अगर ऐसे नंबर को लिया गया तो a⁻m/n इज बेसिकली nth रूट ऑफ a टू द पावर m। ठीक है, और वो जो m है वो अंदर की तरफ आ जाता है, विच कैन बी रिटन एज nth रूट ऑफ a⁻m। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है इसकी। ठीक है, तो ये सारे जो है ना, दिस इज फॉर नॉन जीरो रियल नंबर a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a could not be 0 and a⁻0 is always 1। एक्चुअली a ना एक कोई भी नंबर है। ठीक है, और कोई भी नंबर को जब आप पावर दोगे 0 से तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉज ऑफ x/2। दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 3⁻², रेज़ टू पावर रेज़ टू 3⁻²। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो बाहर वाला पावर है ना, इसको आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यू विल गेट 3 to the power 2 into 3/2। तो this will come as 6/2 which is 3। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखो ये वाले जो थी ये प्रॉपर्टी थी a⁻m to the power n, तो दिस इज a⁻m
m into n. तो ये this is 3 का cube and we know that 3 cube is 27. ठीक है? Okay. Another example we are taking which is 32 raised to 2 by 5. अब 32 को अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आप कैसे करोगे? आप एक स्मॉलेस्ट नंबर लोगे विच इज 2 और आप उसको एक डेसिमल एक्सपांशन से उसके वैल्यूज निकालोगे. तो आप जब वैल्यूज उसके निकालोगे यू विल फाइंड कि 32 कैन बी रिटन एज 2 raised to 5 which is 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So what is 32? It is basically 2 raised to 5. और उसके बाद जो हमने पहले वाली प्रोसेस की थी जो हम लोग 32 को 2 raised to 5 का पावर दे देते थे, यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे. 32 को हम लोग 2 raised to 5 का पावर दे देंगे और 2 raised to 5 को भी हम लोग 2 raised to 2/5 का पावर दे देंगे. अब यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी पता है ना? यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी पता है. यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? देखो ये a raised to m और ये मल्टीप्लाइड बाय n है, तो आप ये n को अंदर ले लोगे. ठीक है? तो you will find 2/5 into 5 which is 10/5 which is 2. This is basically 2 raised to 2 which is 4. Yes? तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 4. So 32 raised to 2/5 is answer 4. Okay? Okay. So this was all about number system and आपको ये घर पे प्रैक्टिस करना है and see to it कि आप more and more sums करो. Okay? So I hope कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो. Do practice the sums. Have a nice day. Goodbye everyone.